A very good morning, my dear student. My dear student, as you know that at present rectification of error chapter is going on, and in theoretical part we have discussed error of omission, error of commission, error of principles, and compensating error. So in numerically, we will discuss some points, my dear student. Now this is a mixed question. Question is this, my dear student. Question is like this. They are saying following errors were identified in the book of Prasad. Pass necessary entries to rectify them. My dear student, first point is this: rupees 5,000 paid for furniture purchased had been charged to ordinary purchase account. My dear student, if we are purchasing furniture, so what comes in the business? Definitely furniture comes in the business. And what goes out? Definitely, my dear student, cash goes out. But they are saying that we have written this on ordinary purchase. It means, my dear students, परचेज को हम कब लिखते हैं? जब वी आर परचेजिंग गुड्स. बट एट प्रेजेंट वी आर नॉट परचेजिंग गुड, एट प्रेजेंट वी आर परचेजिंग फर्नीचर. तो डेफिनेटली entry should be what comes in furniture comes in. The furniture account debit to cash account, but wrongly they are doing purchase account debit to cash account. So now, my dear student, I will explain here. The right entry should be furniture account debit and to cash account, but wrongly they have passed furniture purchase account debit to cash account. My dear student, if you will see that in the right entry cash is credited, in the wrong entry cash is credited. It means in both sides cash is credited. बाय रुपीज़ 5,000. तो डेफिनेटली माय डियर स्टूडेंट, अगर कैश को क्रेडिट राइट एंट्री पे था और रॉन्ग एंट्री पे भी कैश को क्रेडिट किया गया है, इट्स मीन कैश गलती से भी सही हो चुका है. तो नाउ देयर इज नो नीड टू रेक्टिफाइड इन कैश, बट अदर थिंग्स में हमें रेक्टिफाइड करने की ज़रूरत है. राइट एंट्री के थ्रू फर्नीचर को डेबिट होना चाहिए. दैट्स वाई फर्नीचर अकाउंट डेबिट इन द रेक्टिफाइड एंट्री. रॉन्ग एंट्री में परचेज गलती से डेबिट हुआ है, तो इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए इसे क्रेडिट करना चाहिए टू purchase account in the rectified entry. Then rectified entry will be passed, my dear student, furniture account debit and to purchase account. This is the rectified entry. Now I will come on the second point. Second point is this, my dear student. They are saying repair made was debited to building account. My dear student, repair made. On the second point, they are saying repair made. अगर repair करी है आपने, तो यू शुड डेबिट द रिपेयर. रिपेयर इज एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस शुड बी डेबिट, बट यू आर डेबिटिंग टू बिल्डिंग. बिल्डिंग को डेबिट कर दिया. वाई यू आर डेबिटिंग टू बिल्डिंग? बिल्डिंग को डेबिट तब करना चाहिए जब आप बिल्डिंग परचेज कर रहे हो या कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग कर रहे हो. देन वी कैन से बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग इज कमिंग इन द बिजनेस. बट एट प्रेजेंट बिल्डिंग इज नॉट कमिंग द बिजनेस बिकॉज एट प्रेजेंट वी आर डूइंग द रिपेयर ओनली. तो रिपेयर इज एक्सपेंसिव. So entry should be passed that repair account debit to cash account, but wrongly they have debited to building account. तो इन्होंने गलती से क्या एंट्री बनाई होगी? Building account debit and to cash account. Now my dear student, now you can check. The right entry is a repair account debit to cash account. Wrong entry is a building account debit to cash account. कैश से कैश आप my dear student काट सकते हैं यहाँ पर भी, कैश और कैश, बिकॉज कॉमन थिंग कैश कैश सही हो चुका है. रिपेयर शुड बी डेबिट इन द राइट एंट्री, तो रेक्टिफाइड में डेबिट करिए. रॉन्ग एंट्री में गलती से बिल्डिंग डेबिट हुआ है, तो उसे आप क्रेडिट कर दीजिए उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए. नाउ रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, दिस आर रेक्टिफाइड एंट्री, माय डियर स्टूडेंट. नाउ आई विल कम ऑन द थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज दिस, माय डियर स्टूडेंट. थर्ड पॉइंट इज लाइक दिस: एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1,000 विदड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज. पर्सनल यूज के लिए प्रोपराइटर ने निकाले 1,000 रुपये. तो पर्सनल यूज के लिए निकालने तो डेफिनेटली इट इज ड्राइंग. तो ड्राइंग इज एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, तो एंट्री शुड बी पास ड्राइंग अकाउंट डेबिट एंड टू व्हाट गोज आउट, परचेज गोज आउट. सॉरी, नॉट परचेज, एन अमाउंट. अमाउंट मीन्स 1,000 रुपीज निकालने हैं, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दिस इज अ राइट एंट्री. बट माई डियर स्टूडेंट, दे आर सेइंग दैट हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस. दे आर सेइंग ट्रेड एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया गया है. तो नाउ इफ ऑनर पर्सनल यूज के लिए निकालेगा तो एंट्री बनी चाहिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स इज एक्सपेंसेस एंड टू कैश अकाउंट, बट दे हैड डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट.
नाउ माय डियर स्टूडेंट, नाउ कैश इज कॉमन थिंग, तो कैश से कैश को आप काट दीजिए। तो ड्राइंग शुड बी डेबिट फ्रॉम द राइट एंट्री। तो इन द रेक्टिफाइड एंट्री ड्राइंग विल बी डेबिटेड, इन द रॉन्ग एंट्री ट्रेड एक्सपेंसेस गलती से डेबिट हुआ है, उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको हम क्रेडिट करते हैं माय डियर स्टूडेंट टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। Like this entry will be finished. Now my dear student, I will come on the fourth point. Fourth point is this, my dear student, rupees 1000 paid for rent debited to landlord account. रेंट के आपने 1000 रुपये दिए हैं, तो आपकी एंट्री बननी चाहिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट इज योर एक्सपेंसेस, बट यू हैव डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड को आपने डेबिट किया है, इसका मतलब आपने ऐसी एंट्री बनाई जैसे हमने लैंडलॉर्ड को पैसे दे दिए। लैंडलॉर्ड इज अ रिसीवर, बट माय डियर स्टूडेंट इफ यू आर पेइंग द रेंट, तो रेंट इज योर एक्सपेंसेस। और जब आपको अपने एक्सपेंसेस का नाम पता है, डेफिनेटली यू हैव टू यूज योर। नाउ माय डियर स्टूडेंट, आई विल कम ऑन द सॉल्यूशन। इन द सॉल्यूशन नाउ यू कैन सी that right entry should be rent account debit and to cash account, but wrong entry they have debited wrongly the landlord account debit and to cash account. My dear student, cash is common in the right and wrong entry. Then we will cut the cash because cash is correct. Now rent should be debit from the right entry, definitely rent account debit, and गलती से landlord debit हुआ है तो उसे credit कर देंगे। तो rectified entries are rent account debit and to landlord account. Now my dear student, I will come the next entry. Next is my dear student number 5th. Number 5th is my dear student like this. Dead. Salary of rupees 1250 paid to a clerk. My dear student, definitely हम clerk को नहीं किसी को भी paid कर सकते हैं salary. तो right entry should be salary account debit to cash account. Salary is expenses. But they are saying has been debited to his personal account. Personal account means clerk के नाम को डेबिट कर दिया गया। क्लर्क का नाम जो भी होगा, राम, श्याम, दिनेश, मोहन, तो हमने कहा राम अकाउंट डेबिट, श्याम अकाउंट डेबिट, दिनेश अकाउंट डेबिट, अदरवाइज वी कैन से क्लर्क अकाउंट डेबिट। तो क्लर्क इज अ रिसीवर, बट माय डियर स्टूडेंट एट प्रेजेंट हमें इस तरह की एंट्री नहीं बनानी चाहिए, बिकॉज एट प्रेजेंट वी आर पेइंग द सैलरी एंड सैलरी इज एक्सपेंसेस एंड व्हाट गोज आउट कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, तो डेफिनेटली सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री बननी चाहिए। तो नाउ आई विल कम ऑन द सॉल्यूशन। राइट एंट्री शुड बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रॉन्गली दे हैव प्रिपेयर्ड क्लर्क अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नाउ आई विल कट कैश, सैलरी शुड बी डेबिट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, क्लर्क गलती से डेबिट हुआ है, इसका इफेक्ट खत्म करिए, इसे क्रेडिट कर दीजिए। तो रेक्टिफाइड एंट्री विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट एंड टू क्लर्क अकाउंट। नाउ माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अ सिक्स्थ एंट्री। सिक्स्थ पॉइंट इज दिस, rupees 1000 received from Shah and Company. Spelling is this, Shah, SHAH, Shah and Company, has been wrongly entered from SHAW Shah and Company. तो यहाँ पर पूरी की पूरी कंपनी का नाम ही चेंज कर दिया है। तो अगर हमें रिसीव्ड हुए हैं तो व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन एंड टू शाह एंड कंपनी। तो नाउ यू कैन सी द राइट एंट्री शुड बी माय डियर स्टूडेंट कैश अकाउंट डेबिट एंड टू SHAH Shah and Company. What they have done, cash account debit to SHOW Shah and Company. So now my dear student, at present cash and cash is a common thing here, debit तो कट जाएंगे। Now SHAH Shah and Company should be credit from the right entry, तो rectified में भी आप चेक करेंगे उसे हमने क्रेडिट ही करा है to SHAH Shah and Company, और ये गलती से क्रेडिट हुआ है SHOW Shah and Company, इसे डेबिट करेंगे इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए, Shah and Company अकाउंट डेबिट। So that's why this rectified entry will be final, my dear student. My dear student, I did not prepare the seventh entry. Seventh entry is this, rupees 7000 paid in cash for printer. For printer, yes my dear student, it means you are purchasing a printer. Right entry क्या बननी चाहिए, printer account debit and to cash account. Printer is coming and to cash account, cash is going. But they are saying that charge from office expenses. इसको प्रिंटर एसेट में ना चार्ज करके ऑफिस एक्सपेंसेस खर्चे में चार्ज कर लिया, तो ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करा होगा, कैश से कैश काट दीजिए, प्रिंटर को डेबिट होना चाहिए, प्रिंटर अकाउंट डेबिट एंड टू ऑफिस एक्सपेंसेस। तो नाउ माय डियर स्टूडेंट इन द सॉल्यूशन यू कैन चेक दैट रेक्टिफाइड एंट्री प्रिंटर अकाउंट डेबिट एंड टू ऑफिस expenses account. These all are the rectified entry
and I have prepared the rectified identity, my dear student, here also. So now like this you will complete this question. So thank you very much and God bless you, my dear student. I hope you understood this concept. Thank you very much and God bless you, my dear student.